Namaskar dosto, welcome to the special podcast Sarika on Mic, where we bring you insights for cancer treatment, advancement in oncology, and challenges faced by the doctors performing in small cities like Ranchi. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत खुशवाहा, HOD of Surgical Oncology at RIMS Ranchi. Dr. Ajit is a highly skilled and dedicated cancer surgeon, and he has performed more than 1,000 surgeries in his tenure from 2016 onwards. Under his leadership, the Department of Surgical Oncology at RIMS, which was established in June 2019, has grown into a fully functional unit providing OPD, OT, ICU, and inpatient services to cancer patients from Jharkhand and other neighboring states. Sarika on mic. Welcome to our show. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपको सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बनने की प्रेरणा कैसे मिली और अपने बारे में आप कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले आपको धन्यवाद, सच ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन फॉर मी। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS we have to go through entrance exam for PG, that is post graduation. Okay, so depending on your rank you get your branches. So in that we got I got a general surgery department. Okay. So I was ranking around 1400 in all India level at that time. Oh, that's okay, really then after completing PG again we had to face entrance examination for doing super specialty. So at that time also central examination was conducted and I was ranking around 13 or 14 in India level. So at that rank I was getting surgical oncology. So that's why I chose. Nothing preference. What I got I chose. That's very interesting and it's actually nice to do what you like. So it's better to like what you are doing. Medical science is like that only. But you cannot get everything what you desire. So whatever you get, you have to get perfection in that. Over time you get perfect in that and you like doing your work also. So surgical oncology I got by my rank. So after working for considerable period of time, I started liking this branch. So I'm continuing. Okay, that's really interesting. Thank you. और हम जानना चाहेंगे कि आपने हजारों सर्जरीज परफॉर्म करे हैं, तो इनमें से सबसे चैलेंजिंग कौन सा सर्जरी रहा होगा या आपके लिए कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे लास्ट मोमेंट में कुछ मिरेकल हो गया हो, बचने की पेशेंट की बिल्कुल उम्मीद ना हो और पेशेंट को आपने बचा लिया हो? मेडिकल साइंस में तो जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं खासकर सर्जरी में, दे ऑल आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, सो नथिंग समथिंग लाइक मिरेकल दैट आई कैन से. So basically all surgeries are challenging depending on your expertise. शुरुआत में जो छोटी सर्जरी आज मुझे लगती है उस समय तो चैलेंजिंग लगते थे. धीरे ओवर टाइम आई ऑल्सो गेन एक्सपीरियंस. तो अभी तो मोस्ट ऑफ सर्जरीज हम लोग कर लेते हैं इन दिस डिपार्टमेंट. तो नथिंग मच मोर चैलेंजिंग, मतलब सब ठीक ही है. हाँ, कभी कभार पोस्ट ऑफ मतलब ऑपरेशन के बाद आप कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट उतना अच्छे नहीं करेंगे. समटाइम्स लगता है कि अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम नहीं होगा या फिर शायद पेशेंट विल नॉट सर्वाइव. बट देयर आर फ्यू इंसिडेंट्स इन विच आपको मतलब कि अच्छा रिजल्ट मिल जाता है. कई बार ऐसा होता है कि आपको पेशेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा पोस्ट ऑप पीरियड में, बट दे आर डिड अच्छा किए और दे आर स्टिल कमिंग. ओके. और आप हर दिन इतने कैंसर पेशेंट से मिलते हैं, तो इससे पहले भी आपको एक्सपीरियंस है रिम्स ज्वाइन करने से पहले आप 2016 से काम कर रहे थे, तो किस हॉस्पिटल में थे और झारखंड में आने के बाद या रिम्स में आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि झारखंड में कैंसर के नंबर्स बढ़ रहे हैं? बिफोर ज्वाइनिंग रिम्स मैं 2016 में हैदराबाद में निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में था. Then for a short period I was here in SCG Ranchi because my wife was studying in Jamshedpur. She is also MD, so I came back to Ranchi. Doctor's family. Then she had to go to AIIMS Patna. तो पीछे मैं भी चला गया. तो मैं फिर वहाँ पर महावीर कैंसर संस्थान पटना में फिर मैंने ज्वाइन किया.
और उसके बाद फिर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कम टू बैक टू माई इंस्टीट्यूट, माई पेरेंट इंस्टीट्यूट, सो आई कैन टू इन 2019 and like you said that we established the department in 2019. 2019. तो अंडर योर लीडरशिप बहुत ही ग्रो किया है और We started with in surgical oncology. In total oncology, there were 15 beds when we had started the department. Radiation oncology department was already there. Total 15 beds were there. So right now we have 54 beds. We have 2 functional OTs, which were not there earlier. We perform 4 days a week OT. Then still we have 2 faculty only in surgical oncology department. We have a good number in the OT. Staffs are there in the OT, and daycare also facility has been started. And recently we have got accreditation for 2 shifts in surgical oncology. Students will be coming for training. So in that way we will get our own PG students in this department, and which can they will have, it will be 3 years course. After passing out they can join as a faculty in the department. Oh, that is very nice. Observing the students in the they can so that the institute will continue to work. For any institute to grow, we need a permanent supply of faculties. So since Ranchi is not very famous among doctors to come and join, and nowadays very few doctors like to join to government hospitals. So मतलब यहाँ अगर काम करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे और इंस्टीट्यूट का ग्रो करने में हेल्प करेंगे. जैसे अभी 2 हम लोग हैं, बाद में 4, 5, 6 ऐसे फैकल्टीज आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि मतलब इतने बेस्ट डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो पैसे वाले हैं अधिकतर वो कतराते क्यों है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करने से. और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि मेरा खुद इलाज इसी हॉस्पिटल रिम्स में हुआ है और मुझे बेहतरीन सर्विसेज मिली यहाँ पे, और मैंने शायद बेहतरीन डॉक्टर का चुनाव किया अपनी सर्जरी के लिए. तो मैं चाहूंगी कि दूसरे लोग भी आए यहाँ इस हॉस्पिटल में और यहाँ से इलाज करवाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई कम है किसी भी क्षेत्र में. नहीं, देखिए डॉक्टर्स प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट हो, डॉक्टर्स वही रहते हैं. जो मैं भी प्राइवेट में बैठूंगा तो मैं वही हूँ, यहाँ काम करो तो मैं वही हूँ. केवल फ़र्क पड़ता है कि फैसिलिटीज़ में, मतलब पेशेंट केयर जो होता है ना उसमें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2 ही डॉक्टर जैसे नहीं होते हैं. प्राइवेट में हो सकता है कि आपके पास 4-5 डॉक्टर होंगे, मतलब कि डॉक्टर ज़्यादा अवेलेबल होंगे. नर्सेज जैसे यहाँ पर थोड़े कम है, तो हो सकता है प्राइवेट में आपको एक पेशेंट पे एक नर्स मिल जाए. तो वो केयर जो होता है ना, थोड़ा सा वो केयर थोड़ा बेहतर होता है कुछ भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. बट क्वालिटी ऑफ जो वर्क है, जो कि इम्पोर्टेंट फैसिलिटी जैसे कि सर्जरी हुई या कीमोथेरेपी हुई या रेडिएशन हुई, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता. वो आप गवर्नमेंट में कराओ चाहे प्राइवेट में कराओ, देयर नो चेंज, बिकॉज ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट आपका स्टैंडर्ड है. वी फॉलो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस. राइट नाउ वी आर फॉलोइंग NCCN गाइडलाइन. तो दिस गाइडलाइंस आर मेड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च. कई 10 साल 5 साल रिसर्च के बाद ये सब आते हैं आपके टेक्स्ट बुक्स में, जो हमें पढ़ाई जाती है, जो हम लोग पढ़ते हैं रेगुलरली में, और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है सारा. तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो गाइडलाइन के अनुसार ही होती है, चाहे सर्जरी हो, चाहे कीमो, चाहे रेडिएशन हो. हाँ, कुछ एरिया जैसे पेशेंट का नर्सिंग केयर हुआ या फिर कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि आपका वार्ड बॉय हमेशा अवेलेबल, प्राइवेट हॉस्पिटल में 3-4 वार्ड बॉय रहेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ही वार्ड बॉय. तो कभी CT स्कैन के लिए जाना होगा, चाहे कभी एक्सरे के लिए जाना होगा, या फिर ब्लड सैंपल ही आपका निकाल कर जांच के लिए भेजना होगा, हो सकता है आपके रिलेटिव जाना पड़ेगा रिम्स में. बट प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा कि आपके पास डेजिग्नेटेड वार्ड बॉय होंगे, वो सैंपल लेके जाएंगे, टेस्ट करके रिपोर्ट ला के दे देंगे, बेड साइड दे देंगे आपको. इसी से वो लोग कतराते हैं, दैट्स व्हाई दे डोंट. थोड़ा दौड़ना ज़्यादा पड़ता है लाइन में लगने पड़ता है. बट क्वालिटी ऑफ केयर इज ऑलमोस्ट इक्वल एवरी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलमोस्ट. जो रिकमेंडेड स्टेप्स है वो बाईपास कभी कहीं नहीं होता. तो मेरा ये क्वेश्चन था कि
जैसे कि आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं, तो झारखंड में कौन से कैंसर से सबसे ज्यादा ग्रसित है लोग, और ये क्यों हो रहा है? देखिएगा, हम लोग का अपना डाटा जो है सिंस 2019 वी हैव कंपाइल्ड आवर डाटा, और रिसेंटली हमने पब्लिश भी किया डाटा। उस डाटा में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास एज ए होल सिस्टम देखें तो जीआई कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन, बट एज ए इंडिविजुअल यूनिट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सी ब्रेस्ट है। उसको मतलब महिलाओं के जनरल में सबसे ज़्यादा कॉमन सी ब्रेस्ट और सी सर्विक्स है। उसके बाद ओरल कैंसर, और उसके बाद बाकी सब कैंसर। ओरल कैंसर मतलब कि मुख्य कैंसर है। और इन सब का मुख्य कारण क्या हो सकता है, और छोटे मतलब गांवों के लोगों को कैसे अर्ली स्टेज में पता चल सकता है कि उन्हें कैंसर है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, समय समय पर गवर्नमेंट तो आपका विज्ञापन के थ्रू और ये सब रेडियो के थ्रू जागरूकता फैलाती रहती है। हम लोग भी कभी जाते हैं, मतलब मीडिया के थ्रू, कभी दूरदर्शन में, कभी रेडियो में जागरूकता फैलाते हैं। तो बेसिकली लोगों से, मेरी आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि देयर फ्यू ओवर्ट साइन, मतलब जो कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो कि एकदम ऑब्वियस हैं, उसको इग्नोर ना करें। खासकर मान लीजिए कि मुंह में कहीं छाला है, कहीं घाव है, तो ठीक नहीं हो रहा बहुत समय तक, तो उसको इग्नोर ना करें, तो ज़रूर जाके आप डॉक्टर से मिलें। खासकर अगर आपका हिस्ट्री है कि आप तम्बाकू यूज करते हैं। अच्छा। तम्बाकू खाने कैंसर कारक है। तो मुझे लगता है झारखंड एरिया में बहुत ज्यादा खैनी तंबाकू का सेवन करते खैनी हैं। खासकर लोअर क्लासेस में, और सबसे बड़े विडम्बना ये है कि लोअर क्लास खैनी तो कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जब कैंसर हो जाता है या ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो भी आते हैं लास्ट स्टेज में, मतलब दे डोंट टर्न अप इन फर्स्ट अर्ली स्टेज। तो कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर ऐसा है कि उसमें हम लोग लास्ट स्टेज में भी ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन लास्ट स्टेज का कैंसर का जितना बड़ा बीमारी उतना बड़ा ऑपरेशन, तो उस ऑपरेशन के बाद उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, जैसे खाने में, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। यही वो पहले स्टेज में आते तो छोटी सर्जरी होती और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होता है। तो जैसे मुंह का कैंसर मैंने बताया, इसी तरह महिलाओं में मान लीजिए ब्रेस्ट में बहुत समय से गांठ है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको दिखाना है, इसमें कुछ ऐसी नहीं, पता नहीं चलेगा। या फिर मान लिए बच्चा रहने से रक्त स्राव हो रहा है, तो वो भी ऑब्वियस साइन है। या फिर पैखाना में खून आ रहा है बार बार, नहीं ठीक हो रहा है आपका। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपका बहुत प्रत्यक्ष है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर ऐसा चीज़ है जो लगातार आपके परसिस्ट कर रही है बॉडी में, तो आके डॉक्टर से लेना चाहिए। कुछ अलग साइंस है, जैसे कि आपका अचानक वजन कम हो जाना, या फिर पेट समान रूप से बढ़ रहा है, मतलब फूल रहा है, या आवाज़ चेंज हो रहा है, या खांसी में खून आ रहा है। ये अलग अलग भाग के कैंसर का अलग अलग सिम्टम्स। जैसे मेरे केस में मेरा पेट बहुत फूल गया था, तो मैं भागी तो आपके केसेस में उस कैंसर को पकड़ना मुश्किल है। ओवेरियन कैंसर। आपका कोई, मतलब आपका कोई दोष नहीं है ना, या बाकी पेशेंट जो आते हैं, ये ओवरी कैंसर को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब कि जनरली एडवांस स्टेज में ही पकड़ाते हैं यूजुअली। ओके। और ये जैसे आप गांव के लोगों से इतने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ वो बहुत ज्यादा नंबर्स में आते हैं, तो उनकी कोई गलत धारणाएं हैं कैंसर को लेकर, या झाड़ फूक में चले जाते हैं हॉस्पिटल में? सबसे गलत धारणा तो मैं यही बोलूँगा मैडम, पता नहीं बायोप्सी कर देंगे तो बीमारी फैल जाएगी। तो ये चीज़ें, देखिए बायोप्सी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है डायग्नोसिस का। कोई भी कैंसर का पेशेंट आता है ना, सबसे पहले हम लोग उसका हिस्ट्री लेते हैं कि उनको क्या क्या तकलीफ है, फिर उनको जांच करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग उनको कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं, जैसे CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ। उसके बाद फिर अगर पता चले कि हाँ इस भाग का कैंसर है, इस स्टेज में है, फिर वो कंफर्म करने के लिए बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बाद ही आपका इलाज शुरू हो पाता है। तो बायोप्सी से बहुत लोग कतराते हैं कि बायोप्सी करा लेंगे तो बीमारी फैल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बायोप्सी कराना इम्पोर्टेंट स्टेप है। और दूसरी धारणा एक है कि लोगों को लगता है कि हम एलोपैथी नहीं करके कुछ और ट्रीटमेंट ले लेंगे तो शायद बिना चीरफाड़, बिना ऑपरेशन का ठीक हो जाएंगे। ये धारणा है, लेकिन समाज को ये जानना चाहिए कि कोई रिसर्च के द्वारा अगर कुछ
गाइडलाइंस आई है, जो कि हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रहा है इस बीमारी के बारे में। तो निश्चित तौर पे जब हम लोग करोड़ों पेशेंट को देख करके कुछ गाइडलाइन बना रहे हैं तो वो बेहतर होगा, वो अच्छा होगा। उसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी और समय समय पर इम्प्रूवमेंट होते रहता है, बट एटलीस्ट वो ट्रस्टेड गाइडलाइंस होंगी। और आपके जैसे कि मैं ये नहीं बोलता दूसरे फैकल्टी के बारे में, चाहे एलोपैथी आयुर्वेदिक हुआ या फिर होम्योपैथिक हुआ या झाड़ फूक हुआ, उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट उन लोग के पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, ना ही रिसर्च हो रहा है। अगर रिसर्च होते रहता और उसने इफेक्ट दिखाया होता, पेपर पब्लिश किए रहते, जो कि हमारे ही कंट्री में वर्ल्ड के सब डॉक्टर्स को देखते हैं कि हाँ भाई इन्होंने इस कैंसर का ट्रीटमेंट इस पद्धति से किया और इसका अच्छा रिजल्ट किया, तो नेचुरली उनका भी ट्रीटमेंट को अक्लेम किया जाता और वो भी ट्रीटमेंट बेनिफिट के लिए आता। तो ऐसा कुछ पेपर्स उनके पास नहीं है, ना एविडेंस पब्लिश किए हैं। तो इसलिए मैं वो बोलूँगा कि जब तक कि मतलब कोशिश करें पहले आप एलोपैथी ट्रीटमेंट करें, और ना कर पाए, लगता है कि डर बहुत ज़्यादा लगता है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा पहले आप एलोपैथी डॉक्टर से मिलिए। बाकी आपकी इच्छा है कि आप होम्योपैथी से मिले कि आयुर्वेदिक से, आपकी अपनी इच्छा। नहीं, लोग एलोपैथी में ही जाते हैं क्योंकि बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा एलोपैथी में ही होता है। हाँ, मैंने भी ये देखा है। वो रिसर्च बोले ना, काफ़ी रिसर्च होता है और रिसर्च ऑनगोइंग है। ऐसा नहीं कि आज ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है तो आज से 5 साल बाद वही ट्रीटमेंट। हर समय नए नए ड्रग्स आते रहते हैं, नए ट्रायल्स आते रहते हैं, रिकमेंडेशन चेंज होते रहते हैं अपना बेसिस, लेकिन रोबस्ट एविडेंस पे। ऐसा नहीं कि मतलब कि आज मुझे अच्छा लगा कि ये करना है तो मैं आज ये करूँगा, कल मुझे ये अच्छा लगा तो करूँगा, ऐसा नहीं है। रिकमेंडेड गाइडलाइंस है तो ही चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज। और अगर देखा जाए तो कैंसर के बचाव के लिए डाइट और लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, एज पर बुक लिटरेचर जाइएगा तो अराउंड 40 to 50% कैंसर तो आप ऐसे ही प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल और कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका एनवायरमेंट टोबैको जैसे कि आप खैनी या तो खैनी खा रहे हो या फिर सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जैसे सुपारी जो खा रहे हैं, अगर वो छोड़ दें तो मुझे लगता है कि भारत में 30-40% कैंसर तो ऐसे ही कम होंगे। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि तंबाकू खाने के साथ में अल्कोहल भी आप सेवन करते हैं, तो अल्कोहल और तंबाकू दोनों का सिनर्जिस्टिक एक्शन एक दूसरे को सपोर्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है रिस्क फैक्टर्स। तो एक वो चीज़ हो गई जो कॉमनली हम लोग प्रिवेंटेबल है और इसलिए। तीसरा है आपका एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना, खासकर प्रोसेस फूड जितना ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं, प्रिजर्व्ड फूड्स खा रहे हैं, स्मोक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर कम करें तो निश्चिंत है कि बहुत सा कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हेल्दी डाइट लें आप, हाई फाइबर डाइट लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें आप, सप्ताह में व्यायाम जरूर करें, फिजिकल एक्टिविटी होने चाहिए। एक आइडियल बॉडी वेट में ज़्यादा ओबीज नहीं होते, बॉडी मास इंडेक्स होता है 18-19-20 आसपास के पास अगर मेंटेन करते हैं आप तो अच्छा बॉडी वेट माना जाता है। फिर कुछ कैंसर्स हैं जो कि आपका तो जिसके लिए वैक्सीन, तो वो वैक्सीन आप अगर यूज़ करें तो लगवा लें, खासकर महिलाओं में इसकी बच्चेदानी करते हैं, उसके लिए 9 से 11 साल के बीच में HPV वैक्सीन दिए जाते हैं। तो वो वैक्सीन हर साल लगाना होता है? ड्यूरेशन है 0 मंथ में, 1 मंथ में, तो वो आपका 3 डोज पड़ता है। ये से अगर ये लगा लेते हैं तो महिलाएं अपना बच्चा नहीं कैंसर से अपना रिस्क बता बच सकते। उसी तरह लीवर कैंसर मान लीजिए, तो लीवर कैंसर में हेपेटाइटिस बी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा रहे हैं लोग तो चांसेस ऑफ कैंसर लो हो गया। इसके अलावा मान लीजिए किसी का फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं, जेनेटिक हिस्ट्री सस्पेक्ट तब करते हैं जब हम लोग लगता है कि कम एज में कैंसर आ रहा है या उस फैमिली में ज़्यादा कैंसर है। तो ऐसे अगर कोई फैमिली से कोई बिलोंग करता है तो उनको अर्ली स्टेज में स्क्रीनिंग के लिए आना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब कि अभी तक बीमारी आपको हुई नहीं है, बट हम लोग
कुछ जांच करके कुछ देख करके हम लोग अर्ली स्टेज में कैंसर बनने से पहले ही हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं, ताकि ट्रीटमेंट उसी समय स्टार्ट हो। और अगर कैंसर हो भी गया तो अर्ली स्टेज में हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये उस फैमिली के लिए जिसमें ज़्यादा कैंसर है। और दूसरा कि हॉस्पिटल में क्या डाइटिशियन रखे जा सकते हैं, डाइटिशियन या योगा वगैरह इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं? देखिए, डाइटिशियन तो हम लोग के रूम्स में है, और हर जगह हर अस्पताल में डाइटिशियन तो इम्पोर्टेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट का एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो गया है कि वो लोग हमारे जैसे ऑपरेशन किए, मुंह के कैंसर का मान लो ऑपरेशन करते हैं तो शुरुआती में 15 दिन 20 दिन लिक्विड डाइट पे रहते हैं, वो भी राइस ट्यूब लगे रहती है, उससे डाइट जाते हैं। तो नेचुरली डाइटिशियन का हेल्प चाहिए न्यूट्रिशन मेंटेन करना। जैसे कोई जीआई सर्जरी हुई, मेजर सर्जरी, तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लॉस होता है, तो उनको वापस बिल्डअप करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट का हेल्प चाहिए, डाइटिशियन का हेल्प चाहिए। दूसरा बात आपने जो योगा और ये न्यूट्रिशन का बात की, देखिए योगा तो कुछ भी ना हो तो कम से कम आपका शरीर को स्वस्थ रखता है ना, आपके फिजिकल ही नहीं आपका मेंटल माइंड को भी वो बेहतर करता है। तो कैंसर ही क्यों, मतलब बाकी जितने भी कॉमन आदमी हो, चाहे कोई भी मरीज हो, सबको योगा और मेडिटेशन तो करना चाहिए। हेल्पफुल आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करने में, आपका बॉडी को एक्टिव रखने में जरूरी है सभी पर। इसमें केवल कैंसर पेशेंट नहीं बोलूँगा, सभी को। और डॉक्टर ऐसा देखा गया जो बहुत हेल्दी रेजीम फॉलो करते हैं, बहुत हेल्दी खाते हैं और शराब नहीं, स्मोकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है, मतलब फिर भी उनको अगर कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए तो हाँ, इसका क्या है? अगर स्ट्रेस होता है क्या, ये इसका स्ट्रेस भी क्या कारण होता है? जैसे मैंने बोला ना 40-50% केसेस का तो हम लोग तो प्रिवेंटेबल कॉज में मान, बाकी कुछ है आधे जो कि हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। खासकर इसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो गया कुछ, तो वो आपके हाथ में नहीं, किसी हाथ में। और मल्टीपल जीन्स हैं, किसी में भी हर सेल डिवाइड करते रहता है, डेली डिवाइड कर रहा है, किसी स्टेप में उसका म्यूटेशन हो गया, कोई गड़बड़ी आ गई, तो वो सेल्स आपका कैंसर का फॉर्म दे सकता है। ये आपके अख्तियार में नहीं है कि हम ये कर लेंगे तो ये नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम लोग मेंटेन करते हैं और स्ट्रेस का नहीं लेते हैं तो चांसेस ऑफ कैंसर हट जाता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि सबको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी आज प्रेजेंट जितना हमें डेवलपमेंट साइंस किया है, हम लोग सब कैंसर प्रिवेंट नहीं। तो फ्यूचर ऑफ ऑन्कोलॉजी और रोल ऑफ एआई जैसा कि देखा जा रहा है कि आ रहे हैं, तो ये रिम्स में कौन कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं और फ्यूचर आपको क्या लगता है, रोल एआई का क्या रोल रहेगा, कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये? देखिए, अभी तो रिम्स का तो मैं बात करूँ तो अभी हम लोग अभी बेसिक डिपार्टमेंट ही आपका बेसिक फैसिलिटी पे चल रहा है। रिम्स से ही हम ऑलमोस्ट झारखंड के सारे कैंसर अस्पताल लगभग दे सकते हैं। अभी रिसर्च का जो विंग अलग से होना चाहिए, उस पर हम लोग का डिपार्टमेंट, अभी हमारा डिपार्टमेंट उसका अलग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश ही होता है। उसको उतना शोध अभी नहीं हुआ, शुरुआत हो गई है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने जेनेटिक रिसर्च ज्वाइन किए हैं और रिसर्च कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आपका हर व्यक्ति का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, ये कहा देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को मुंह का कैंसर है, ठीक है, तो उसका किस भाग में कैंसर है, किस स्टेज में है, और क्या क्या उससे प्रॉब्लम उसको हो रहा है, बोलने में, खाने में, पीने में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिजाइन है। अभी जैसे है कि हम लोग का ट्रीटमेंट डिजाइन है कि मुंह के कैंसर में ये चीज़ करना है, ठीक है। हम लोग मतलब कि डाटा हम लोग का है कि हाँ जनरल डाटा है कि 100 पेशेंट में ऐसा चीज़ है, ये करना है। या जैसे आपके केस में ओवरी कैंसर, तो हम लोग का डाटा ये है कि हाँ ओवरी कैंसर में ये वेरिएंट रहेगा, जैसे आपका क्लियर सेल वेरिएंट। क्लियर सेल वेरिएंट में यूजुअली कीमो रेजिस्टेंट भी होता है और रेडियो रेजिस्टेंट। तो सर्जरी जब प्लानिंग, सर्जरी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम सर्जरी आप लोग फॉर्म करते हैं।
तो वो चीज़ हम लोग का है, लेकिन हाँ एज ए यूनिट बताओ आप, आपके लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हम लोग भविष्य में होगा। ये नहीं बस आपको देखते हुए हाँ कि भाई आपका ये स्टेज है, ये है, ये है, फिर आपके लिए पर्सनल। और एआई का रोल, जैसे कि रशिया भी वैक्सीन बना रहा है, एमआरआई, तो वो भी वही कर रहा है। वो आपका क्या करते हैं, इसके वैक्सीन दो टाइप का होता है। एक हुआ प्रिवेंटिव, जो प्रिवेंट करता है बीमारी को। एक होता है थेरेपेटिक। प्रिवेंटिव हुआ जैसे कि बच्चों को सुबह सुबह हम लोग वैक्सीन दिलवाते हैं कि खांसी ना हो, ये ना हो, तो बीमारी के लिए पीपीटी पड़ता है, आपका बीसीजी पड़ता है, तो प्रिवेंटिव है। कैंसर में प्रिवेंटिव वैक्सीन में दो बताया, जो एचपीवी और हेपेटाइटिस। इसके अलावा सब थेरेपेटिव वैक्सीन, मतलब अगर बीमारी हो जाए तो ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ऐसा नहीं कि रशिया आज न्यूज में है तो इस पर काम नहीं है। ऑलरेडी मेलानोमा एक टाइप का स्किन कैंसर है, तो काफ़ी समय से बहुत शोध हो चुका है और इसमें ट्रीटमेंट आई भी, फिर न्यू ड्रग्स आए तो फिर उस ट्रीटमेंट को छोड़ दिया। देखा गया कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं एज कम्पेयर टू न्यूअर ड्रग्स, तुम घटाएंगे। लेकिन हाँ आपका प्रोस्टेट कैंसर में रोल है इसका अभी भी। फिर और भी कैंसर में इसका शोध ऑलरेडी हो रहा है। तो क्या करते हैं, आपके ही बॉडी को सेल्स लेते हैं लोग और उसी को उस ट्यूमर से एक्सपोज करते हैं और वो जो सेल्स उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं आपका, जिनके पास वो क्षमता होती है कैंसर को मारने की, उसको और हम लोग प्रोपेगेट करते हैं और फिर उसको वापस बॉडी में यूज करते हैं। बेसिक ये है। तो आप ही का बॉडी का सेल्स जो उस कैंसर को मारने में सक्षम है, उसी को हम लोग बढ़ा करके आपको बॉडी में देंगे, तो कैंसर के क्योर चांस बढ़ते हैं। तो फ्यूचर एआई का ही है आपका। ये इम्प्लीमेंट होगा रिम्स में कब तक, ये रोबोटिक सर्जरीज? हाँ रोबोटिक सर्जरी, देखिए मैंने बोला मैडम, सर्जरी का या फिर कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, तीनों जो ब्रांच है सबका गाइडलाइन सबका फिक्स्ड है, ये चीज़ होना है। ऐसा नहीं कि मुझे मान लें कि सर्जरी का बेसिक सिस्टम होता है कि हम लोग पहले ट्यूमर को नहीं, पहले ट्यूमर कहाँ स्प्रेड कर सकता है पहले उसको हम लोग सर्जरी वहाँ करते हैं। जैसे मान लें कि पैर का कैंसर है किसी, तो पहले हम पैर का जहाँ कैंसर उसको सर्जरी नहीं करते, पहले वो जहाँ फैल सकता है, जान का नोड में जो फैलता है, पहले उसकी सर्जरी करें ताकि वहाँ से वो खून के थ्रू या लिम्फेटिक थ्रू पूरा बॉडी में ना चले। तो पहले मैंने उसका रास्ता वहाँ रोक दिया कि अब आप इसके ऊपर फैल नहीं सकते। उसके बाद जो प्राइमरी ट्यूमर उसको हम ट्रीट करें, तो चाहे रोबोटिक ले लें, चाहे आप लेप्रोस्कोपिक ले रहे, चाहे कुछ भी ले, सर्जरी चेंज नहीं होती। हाँ रोबोटिक और आपका लेप्रोस्कोपी से ये जो फायदा है कुछ केसेस में आपका कि आपका पोस्ट ऑफ रिकवरी थोड़ा जल्दी होता है, वो क्योंकि चीरा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा चीरा पड़ रहा है, तो रिकवरी थोड़ा बेहतर होता है, जल्दी होता है कि आप सेकेंड डे से ही आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं, डाइट लेना शुरू करते हैं, वो बेनिफिट है। बट पॉइंट्स ऑफ सर्जरी मतलब गाइडलाइंस सर्जरी चेंज है। तो रोबोटिक्स के लिए हम लोग पेपर्स अभी पढ़ाए हैं, तो लेट्स सी कब तक आता है। और रिम्स में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या इम्यूनो थेरेपी और टारगेट थेरेपी ये सब शुरू होगा क्या? देखिए मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट जब हम लोग आए थे उसमें ज्वाइन था हमारा ही कॉलेज, अभी पटना से ही आए, क्योंकि बिहार के थे तो ही बन जाए, तो हम लोगों ने फिर से वैकेंसी निकाली है और प्रोबेबली संबंध। बट ऐसा नहीं कि रिम्स में मेडिकल कॉलेज नहीं है तो रांची में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है। जैसे मैं बोला ना कि ट्रीटमेंट वेरी नहीं करता है, आप अलग सेंटर में भी जाएंगे तो आपको भी वही बताया जाएगा कि जो आपको में वहाँ भी जैसे ट्रीटमेंट तो हो रहा है, रांची में तो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है आपका, धनबाद में 2 सेंटर खुला है, बोकारो में 1 सेंटर है आपका कैंसर। अच्छा, तो स्लोली बहुत सारे सेंटर्स आ गए हैं जिससे लोगों को बाहर मुंबई बैंगलोर ना जाना पड़े। हाँ देखिए बेंगलोर मुंबई तभी जाना चाहिए जब आपका ट्रीटमेंट ऑप्शंस झारखंड में एग्जॉस्ट हो। तो हाँ ठीक है, आपका हमें
डायग्नोसिस किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है। कुछ न्यू ट्रीटमेंट जो कि नहीं अवेलेबल है उसके लिए आप जा सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है बेसिक सारे ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट 90-95% ट्रीटमेंट तो झारखंड में उपलब्ध है। रेस्ट 3-5% के लिए आप जा सकते हैं। और डॉक्टर ऐसा आपके पास बहुत मामले आते होंगे जो सर्जरी करनी है लेकिन असाइटिस या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सर्जरी नहीं कर पाते, तो वैसे आप पेशेंट्स लोगों को कैसे संभालते हैं इमोशनली प्रोफेशनली? क्योंकि मैंने अपने साइड पे देखा है कि एक शायद 20-21 साल की लड़की थी, असाइटिस की वजह से सर्जरी डिले हो रहा था और वो बहुत खुश थी, नेक्स्ट डे उसका सर्जरी डेट आया था मगर फिर उसको टाल दिया गया क्योंकि शायद उसका असाइटिस बन रहा था। तो देखिए सर्जरी का जो होता है ना उसमें कि आपको अनेस्थीसिया डिपार्टमेंट देखिए जो आपको बेहोश करता है, उनका फिटनेस का आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो कोई भी सर्जरी करने से पहले आपको जरूर वे करना है कि हम बेनिफिट कितना दे रहे हैं मरीज को और कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस बेनिफिट देने में। अगर रिस्क ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू बेनिफिट तो हम लोग डिले करते हैं सर्जरी को, पेशेंट का बिल्डअप करते हैं जनरल कंडीशन, न्यूट्रिशन कम है न्यूट्रिशन दिए और बाकी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम है मान लीजिए BP है, शुगर है या कुछ ब्लड में कोई प्रॉब्लम है वो सब करेक्ट किए तो आप फिर सर्जरी की सर्जरी। तो हमेशा कोई पेशेंट ट्रीटमेंट करना है तो आपको उस ट्रीटमेंट से होने वाले हार्म को, कॉम्प्लिकेशंस को और बेनिफिट को जो होने वाले हैं दोनों को वे करना है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है और बेहतर है एज कम्पेयर टू रिस्क तो ट्रीटमेंट करना है। अगर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है बेनिफिट कम लग रहा है आपको यू हैव टू स्टॉप। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे आता तो मैं कर ही दूँगा, मुझे तो सर्जरी सारी आती है, मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं ट्रीटमेंट नहीं। आपके पास डॉक्टर के पास कैपेबिलिटी हो सकती है कि हम इस कर सर्जरी कर सकते हैं बट योर पेशेंट शुड बी फिट टू अंडरगो दैट। तो मैंने बोला ना पर्सनलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, he or she should be able to undergo that procedure so that he or she get benefited by your work। इसलिए आप जो बोल रहे हैं एग्जाम्पल बोल रहे हैं हम लोग उसको डिले किया हो और जब फिट हुए होंगे तो हम लोग उनको सर्जरी सबमिट किया होगा। कई बार ऐसा होता है कि स्टेज 4 में कैंसर आते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अपार्ट फ्रॉम पेन एंड पैलेटिव ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट में पेन पैलेटिव भी इम्पोर्टेंट कि आपका टर्मिनल स्टेज कैंसर का पेशेंट है जिनका हम लोग किसी भी पद्धति से क्योर नहीं कर सकते तो उनको एटलीस्ट उनका पेन को रिलीफ के लिए हम लोग उसके अलग डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पर। अच्छा। उसमें हम भेजते हैं उनको तो उनका टर्मिनल स्टेज में केयर होता है। इससे हमारे पास अभी 2-3 पेशेंट हैं जो पैलेटिव केयर में भर्ती है। ओके। तो उनका मेंटल रिलीफ के लिए सिम्टम्स के इलाज, सिम्टम्स का दर्द है, दर्द का दवा चल रहा है, खा पी नहीं पा रहे हैं तो न्यूट्रिशन का व्यवस्था किया गया। और डॉक्टर जेनेटिक टेस्टिंग आज के डेट में होता है या होने से ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या कैंसर ट्रीटमेंट में इससे फर्क पड़ेगा, लोगों को पहले ही पता चल जाएगा शायद? देखिए जेनेटिक टेस्टिंग अभी हम लोग कर रहे हैं जिसमें मैंने बताया था जिसमें सस्पेक्ट करते हैं हम लोग कि नहीं इनका इस एज में कैंसर नहीं होना चाहिए था या फिर इस फैमिली में ज़्यादा कैंसर हो रहा है तो हम लोग उसमें जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। हाँ लेकिन लैब जो इसके लिए अभी हमारे पास जो रिम्स का लैब अभी है तो अभी पूरा फुल्ली नहीं मतलब फंक्शनल इसके लिए क्योंकि उसमें भी काम हो रहा है लेकिन अभी हम लोग जो स्टडीज़ के लिए बाहर ही भेजते हैं। यूजुअली सैंपल्स गोज टू मुंबई और दिल्ली और कोलकाता मतलब मेट्रो सिटीज में जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि रियल फ्लेट होता है आपका, तो जो टाइम आपका झारखंड में लगेगा वही टाइम वहाँ भी तो सैंपल से जाता है, टिश्यू सैंपल या ब्लड सैंपल जाता है और जेनेटिक टेस्ट भी चल जाता है। लेकिन अभी उस लेवल पे आई थिंक स्टिल बहुत लंबा रास्ता है वहाँ पे पहुँचना। अभी तो हम लोग को कैंसर जिनको हो गया है उसको पकड़ने के लिए हम लोग को इतना जहत है कि सब स्टेज 4 में आ रहे हैं। तो पॉलिसीज गवर्नमेंट को उसी तरह डिसाइड होती है। मैंने बोला ना पॉलिसी मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसी डाटा पे डिवाइड होती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। एक इंडिविजुअल आदमी का क्या जरूरत है उसके हिसाब से पॉलिसी डिसाइड नहीं होती।
पॉपुलेशन की क्या जरूरत है उसके हिसाब से पॉलिसी डिसाइड। ओके। तो हम लोग जैसे अभी पॉपुलेशन देख रहे हैं अभी भी ओरल कैंसर के जो स्टेज 4 एग्जाम्पल के लिए, तो अभी तो हम लोग वही लैक कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जेनेटिक्स में काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें काम करने की आवश्यकता है, लेकिन गवर्नमेंट का या किसी इंस्टीट्यूट का फोकस ज़्यादा उसमें होगा कि हाँ भाई जिसको कैंसर हो गया है या फिर उसको हम पहले ला के इलाज कर दें। जैसे कि आपका टर्सरी केयर सेंटर है रिम्स झारखंड का, हर स्टेट में एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट होता है। ओके। तो रिम्स रांची इज योर वन ऑफ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। जैसे पटना में आपका IGI, अच्छा। हर स्टेट में आपका एक कैंसर इंस्टीट्यूट, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट SCI होता है। उसके बाद डिफरेंट रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट होता है। जैसे प्रोबेबली गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग टू हैव वन सच सेंटर इन धनबाद और जमशेदपुर। तो उससे क्या होगा कि वो उस एरिया का कटर करेंगे और उस एरिया का पेशेंट को जो को धनबाद से आने में प्रॉब्लम है, उस कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोग को वहाँ ट्रीटमेंट सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। जैसे हम लोग भी डेमोग्राफी पर झारखंड का हम लोग अपना डाटा देखते हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट दैट वी आर गेटिंग इज फ्रॉम नॉर्थ नागपुर, दैट मीन्स योर रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट जो आपके हैं गुमला। नहीं नॉट गुमला और रांची साउथ छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास नॉर्थ छत्तीसगढ़ का आ रहे हैं, उसके बाद साउथ छत्तीसगढ़ का आ रहे हैं। संथाल परगना से भी पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। कोल्हान एरिया से पेशेंट कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कोल्हान मतलब आपका जमशेदपुर। तो ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है, वहाँ भी पेशेंट्स हैं, बट लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब या फिर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उस एरिया। तो इस कारण शायद वहाँ से पेशेंट को आना संभव नहीं हो पा रहा। और यहाँ के पेशेंटों को हमने जागरूक कर दिए हैं तो लोग आ रहे हैं, तो लोग आते हैं। तो गवर्नमेंट को इसी में फोकस करना है कि अच्छा वहाँ के एरिया क्यों नहीं आ रहे हो, कुछ तो कारण होगा। ऐसा तो नहीं हुआ कैंसर नहीं है, वहाँ पर भी है, एक दो पेशेंट आते रहते हैं, लेकिन कम क्यों आ रहे हैं? कम इसलिए आ रहे हैं कि उनको जागरूकता नहीं है। तो उस एरिया फोकस करके वहाँ एटलीस्ट एक रीजनल सेंटर डालना जरूरी है। डालेंगे रीजनल सेंटर वहाँ पर, तो उस एरिया में अवेयरनेस बढ़ेगा। अवेयरनेस बढ़ेगा तो नेचुरली क्योर बेटर। ये करने के बाद, एक बार सब कुछ हो जाने के बाद, साथ साथ में ही आप बाकी भी चीज़ें हैं जो आपका स्क्रीनिंग फैसिलिटीज है साथ में शुरू कर सकते हैं। टेस्टिंग है आपका, जो आप बोल रहे थे स्क्रीनिंग अवेयरनेस होगा, स्क्रीनिंग की आप शुरू। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी को लेकर बहुत ही तरह की अलग अलग धारणाएं हैं। तो कीमोथेरेपी जहाँ कैंसर को क्योर करता है, तो उसके दुष्प्रभाव भी बहुत हैं। तो मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ पे डॉक्टर खुद ही पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि डॉक्टर के फैमिली में किसी को कैंसर हो जाए तो वो कीमोथेरेपी सजेस्ट नहीं करते हैं। क्या ये इतना बुरा है या इसके साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं कि इसे अवॉइड करना चाहिए? तो अगर ऐसा है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं आता? जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर जो अभी हो रहा है कीमोथेरेपी कुछ भी हो, गाइडलाइन के थ्रू, ऐसा नहीं कि वो बिना स्टडी का ट्रीटमेंट आप मान सकते हैं। तो जब अनलेस एंड अनटिल बेनिफिट ज़्यादा हो रिस्क से, तो कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा कोई भी चीज़। कैंसर ही छोड़ दीजिए, बाकी डिजीज, कोई डिजीज जब तक बेनिफिट आउटवेट नहीं करेगा रिस्क को, हानि को। कीमोथेरेपी थोड़ा सा ज़्यादा पब्लिक में ये है, डर है, मतलब कि ये हो जाता है वो हो जाता है। तो है कीमोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं, क्योंकि वो ड्रग आपका पूरे बॉडी में जा रहा है थ्रू योर वेसल्स, आपके वेन के थ्रू आपके पूरे बॉडी में। सर्जरी और रेडिएशन क्या है कि उस पार्ट को ही हम लोग करते हैं। लोकल ट्रीटमेंट का लोकल कॉम्प्लिकेशन, जब वहाँ रेडिएशन पड़ा तो वहाँ का स्किन हो तो जल सकता है, वहाँ का आसपास के एरिया को थोड़ा डैमेज। सर्जरी हमने किया तो वो आसपास का जो भी एरिया पे चीज़ें होंगी
उस एरिया में हल्का फुल्का डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, तो लोकल ही सब कॉम्प्लिकेशन है। कीमो आपका सिस्टमिक है, वो ड्रग पूरा बॉडी में जा रहा है। उसका मकसद ही यही है कि जो सेल्स ब्लड स्ट्रीम में चले गए होंगे, ये सेल्स तो बहुत माइक्रोन में होते हैं, आपको तो पॉसिबल नहीं है डिटेक्ट करना कि हर जगह पहुँचे नहीं, कहीं कहीं साइड पे चले गए होंगे। तो चूँकि ड्रग पूरे बॉडी में जा रहा है तो हर पार्ट में वो जो सेल्स कहीं गए होंगे उनको किल कर, तो सिस्टमिक ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा इसके लिए कारण सिस्टमिक है तो सब जगह जा रहा है, तो हर ड्रग के अपना अपना साइड इफेक्ट उस ड्रग पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट मैनेज आराम से, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। तो इतना घबराना नहीं है कीमोथेरेपी में, और जब तक कि बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा कोई रिस्क नहीं। जैसे मैंने बोला ना, स्टेज 4 कैंसर है बहुत, वी नो दैट दे क्योर फॉर, नॉट क्योर बट एटलीस्ट लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मान लिया पेशेंट कंडीशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, तो हम लोग क्यों फिर कीमोथेरेपी देखें उनको। और तो पेशेंट को देखना है, जब पेशेंट आपका फिट है उस प्रोसीजर को झेलने के लिए, प्रोसीजर का अंडरगो करने के लिए, तो ही ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट आपका 1-2 दिन में डेथ होने वाला है, या फिर या सस्पेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा दिन जिएंगे, तो उनको पेशेंट कीमोथेरेपी देने का मतलब नहीं है, उनको देना ही नहीं प्रिस्क्राइब करना है उनको लेकर। मतलब अगर पता चल जाए कि ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर उनको प्रिस्क्राइब नहीं कुछ नहीं, हम लोग उनको जनरिक जो आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। वो मैं बोल रहा जैसे कि मुझे आता है, ऐसे मतलब ये नहीं है कि मैं वो सब ट्रीटमेंट में लगा दूँ, ये भी डॉक्टर के लिए, अगर उसको फ़ायदा नहीं है तो वो चीज़। ओके। और डॉक्टर, कैंसर रिकरेंस सर्जरी के बाद, कीमोथेरेपी के बाद भी जो रिकरेंस होता है, उस केस में अगर जैसे किसी और ऑर्गन में कैंसर हो गया तो एक पेशेंट कितनी बार सर्जरी करा सकता है? देखिए, जितनी बार बेनिफिशियल है और जितना बार रिकमेंडेड गाइडलाइंस है उतनी बार प्रोसीजर तो होना चाहिए। कैंसर का ऐसा नहीं कि हर चीज़ का रिकरेंस हमेशा ही सबको हो जाएगा। आपका एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल है, हर मरीज को हम लोग रेगुलर इंटरवल पे बुलाते रहते हैं, वो इसी के लिए आते हैं बुलाते हैं। जैसे मुंह का कैंसर है, तो क्योंकि तंबाकू खाया हुआ है तो तंबाकू केवल उस भाग को इफेक्ट नहीं कर रहा, पूरे मुंह को, पूरा एरियो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका जो खाने का फूड पाइप है, सांस लेने के लिए, सब में इफेक्ट करेगा। जिस भाग में कैंसर डेवलप करेगा वो मतलब कि बोलना मुश्किल है, तो रेगुलर फॉलोअप में आएगा। तो अर्ली जो सिम्टम्स होंगे हम लोग पकड़ के उसको इलाज अर्ली स्टेज में कर सकते हैं, वो बेनिफिट है। इसलिए रिकरेंस है भी, अर्ली स्टेज में पकड़ने से फ़ायदा है। या मान लीजिए कोई GI की सर्जरी हुई है, कोई ओवरी की सर्जरी, जो कि ऑलरेडी स्टेज ज़्यादा था, तो मान लीजिए वो रिकर करता है, तो पहले पता चल जाएगा हम लोग को, आफ्टर डूइंग रेडियोलॉजिकल टेस्ट या फिर बायोकेमिकल टेस्ट, कुछ करके हमें पता चल जाता है। तो पहले पता करने से फ़ायदा है कि उसका ट्रीटमेंट पहले से ही स्टार्ट हो। तो ट्रीटमेंट क्या होगा वो ऑल डिपेंड्स ऑन द गाइडलाइंस, क्या उसमें उसका रिकमेंडेड गाइडलाइंस। ऐसा नहीं कि सबका ट्रीटमेंट रिकरेंस का ट्रीटमेंट सर्जरी ही होगा, बस तब उसमें कीमोथेरेपी चेंज किया जाए, रेडिएशन दिया जाए इसको, ऑल डिपेंड्स कि कौन सा डिजीज है, किस भाग में रिकर किया है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है। सबके लिए सर्जरी नहीं होती है, यानी कि सब रिकर हुआ तो सब में सर्जरी। तो रिकरेंस से बचने का कोई उपाय है जो आम पब्लिक के लिए है आपका वही चीज़ जो मैंने शुरुआत में बोला आपको, यू टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जितना स्ट्रेसलेस रह सकता था स्ट्रेसलेस रहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमारा पॉपुलेशन जो है, जब आपको देखिएगा आपका फादर का सर्विस जो करते हैं या मदर सर्विस करते हैं, उसमें उतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं था। उन लोग का कम स्ट्रेस था, दे हैड ए 9 to 5 जॉब, एंड उसके बाद फिर वो घर में जाएँ, शॉप घूम के आ जाए और सब कुछ काम करें।
अब जैसे जनरेशन चेंज होता है कि हमारा जनरेशन आ गया तो अभी लॉट ऑफ ऐसा नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेस में है, डॉक्टर भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, उनका भी पर्सनल लाइफ में कुछ चलते रहता है। सबके स्ट्रेस होते हैं, आपके भी स्ट्रेस अपने होंगे, हमारे अपने स्ट्रेस हैं। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है जनरल पब्लिक में बढ़ा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं सबके शरीर को हार्म कर रहा है, सबको किसी न किसी फॉर्म में हार्म कर रहा है। एक डर समाज में है, फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ बेबी। फियर ऑफ डेथ, अब मेरे दिमाग से वो फियर ऑफ डेथ निकल चुका है। तो वो चीज़ें शायद इसमें योग और मेडिटेशन हेल्प कर सकता है लोगों को। ये चीज़ें देखिए, आप खुद देखिएगा इतनी ज़्यादा पॉलिसीज क्यों लोग ले रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं देयर इज ए फियर कि चलो ठीक है, आई हैव डन माई पार्ट, व्हाट अबाउट इफ आई नॉट देयर, हू विल लुक आफ्टर माय फैमिली। ये सारी चीज़ें एक्चुअली फियर है माइंड में, तभी आप लोग कुछ कर रहे हैं, ये सब पब्लिक कर रहे हैं। तो पूरा समाज में ही ये चीज़ है, पूरा समाज ही आपका एक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जी रहा है। और इसको कम करना तो गवर्नमेंट का ही हाथ में है। अनलेस अनटिल आप इंश्योर करें हर नागरिक को कि नहीं, आपका खाने का, रहने का, इलाज का खर्चा हम उठाएंगे और हम देंगे आपको, अब इसे घबराइए नहीं, तब तक स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा। सिंपल सा चीज़ है, अगर आप कोई भी किसी को, माता पिता को लगता है कि उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, उसका पढ़ाई में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उसके इलाज से कुछ हो, बीमारी हो तो इलाज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सब हमारे लिए है देखने वाले, गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं, तो आदमी स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। ये चीज़ मतलब ये चीज़ गवर्नमेंट को थोड़ा इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है हमारा देश बहुत ज्यादा बीमार हो रहा है। देश बीमार तो नहीं हुआ है, हेल्दी इंडिया का स्लोगन लगाना चाहिए खाने पीने की चीजों में, तो पेस्टिसाइड्स और वो सब यूज हो रहे हैं। बेसिक, हाँ देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोला कि जितना ज़्यादा हम लोग ये सब अभी यूज हो रहा है फार्मिंग में, जितना केमिकल्स यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कोई फोकस नहीं है। ऑन वन हैंड यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑन अदर हैंड में आप यू आर सेलिंग टोबैको एंड अल्कोहल एंड करेक्ट, उसमें बैन नहीं लग रहा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि इधर से बीमारी बांट रहे हैं, अगर से हम लोग इलाज के खर्च कर रहे हैं। तो देयर हैज टू बी सम बैलेंस। ये तो पॉलिसीज गवर्नमेंट के, अब गाड़ियाँ इतना बढ़ गई है रोड पे। अब पहले हम लोग 2001 में रांची आए थे तो लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स थे, और रांची का मौसम कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी तो फरवरी में ही गर्मी होगी, लेकिन हमें याद है कि हम लोग आज गर्मी हुई तो शाम में बारिश होना 100% बारिश, बहुत अच्छी बारिश हुई, अच्छी बात। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आपने कोविड में देखा ना, लॉकडाउन जो हुआ था, तो नेचर वाज हीलिंग हिटसेल्फ, नेचर वाज हीलिंग। पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब नॉट गोइंग दैट पार्ट, बट नेचर वाज हीलिंग हिटसेल्फ। मौसम वापस, आपको उस पीरियड में एसी ऑन की जरूरत नहीं पड़ी, बट अभी देखो आप 15 दिन बाद एसी ऑन कर, आप कार पे एसी ऑन कर चला जाएगा। तो देयर हैज टू बी सम रेगुलेशन। अगर आपको स्वस्थ और बेहतर पॉपुलेशन चाहिए किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, तो आपको ऐसा पॉलिसी डिजाइन करना पड़ेगा ताकि आपका जो पॉपुलेशन है वो स्वस्थ रहे और स्ट्रेस कम रहे उनके पास। ये चीज़ तो पॉलिसीज को गवर्नमेंट जो बना रहे हैं उनको सोचना है। जापान और इजराइल की शिक्षा, खाना, ये सब तो बेसिक राइट्स हैं, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड एवरीवन, सबके होने चाहिए। ये तो आप नेशन में कहीं जन्मे हैं तो राइट होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हैव फूड, ये चीज़ आपका राइट टू हैव हाउस, जो होना चाहिए, तो बेसिक राइट होना चाहिए, और बेहतर इन्वायरमेंट मिले आपको।
तो ये रेगुलेशन तो गवर्नमेंट के हाथ में है। आप गाड़ियाँ रेगुलेट कीजिए, तो फिर क्लीनर एनर्जी वाले जो हैं उनको प्रमोट कीजिए। अगर कल्टीवेशन में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, ये रेगुलेट दैट, नहीं हम लोग अलाउ करेंगे आपको, यू हैव टू स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लोग जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, लोगों को पता है कि इसे बेहतर होगा, बट वो होता है ना कि लोग को भी मानने के लिए एक चाबुक चाहिए अंतर चाहिए कि नहीं, एक लॉ चाहिए कि हाँ भाई आप यही हो। तो ऐसे करके आप तुरंत तो नहीं बोलो, लेकिन 5-10 ईयर्स में आप चेंजेस ला सकते हैं। आप प्रोबेबली चेंजेस लाने के बाद आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपकी बीमारियाँ भी कम हो। आप सिक्किम देखिए, आपके ही देश में एक राज्य एग्जाम्पल है, नो स्पिटिंग जोन है। आप कहीं पान खा के थूक नहीं सकते। आपके ही देश में एग्जाम्पल है। मैं वहाँ काम किया हूँ, 6 months में वहाँ पर था एज ए फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत नीट एंड क्लीन शहर है सिक्किम का, बहुत ही सुंदर भी है। और बीमारियों का इतना है भी नहीं वहाँ पर, कैंसर उतना ज़्यादा नहीं हुआ। सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज तो उनका ऑलरेडी हर दिन होता ही है, क्योंकि बाहर चढ़ना है करना ये भी काम नहीं होता। तो उतना ज़्यादा बीमारी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर उतना ज़्यादा कैंसर वहाँ पर नहीं है। तो क्यों नहीं है, मतलब तो देखना पड़ेगा। वहाँ उतना ठीक अल्कोहल पे उतना रेगुलेशन नहीं है, बट स्टिल टोबैको पर रेगुलेशन है, ठीक ठाक रेगुलेशन। ये तो सारे स्टेट को देखना है। वी हैव ए मॉडल स्टेट इन आवर ओन कंट्री, तो देखना है, सीखना है। ऐसा नहीं कि हमको बाहर जाकर सिंगापुर या फिर किसी और जापान को जाकर देखना है। वी हैव आवर ओन एग्जाम्पल, उसी को देखना है, उसी को फॉलो करना है। जैसे गुजरात में आपका नॉन लिकर बैन है ना, बिहार में ऑल्सो लिकर बैन। मुझे तो लगता है कि प्रोजेक्ट टोबैको बंद करना चाहिए, टोबैको बंद करना चाहिए, गुटखा बंद करना चाहिए। और सुपरस्टार्स ये जो एक्टर्स है वही लोग प्रमोट करते हैं, पहले वो बंद बैन होना चाहिए। उसके बाद आप अल्कोहल, ये नहीं बोला अल्कोहल बैन है, अल्कोहल से आपका बीमारियां भी हैं और सोशल लॉस ज़्यादा है। मतलब पैसा खर्च हो जाना उसमें, वो चीज़ ज़्यादा लॉस कर रहा है। और फैमिली में टेंशन भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े। लेकिन स्मोकिंग तो आपका जो कर रहा है उसी को नहीं, वो पूरा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट, पूरा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। और खैनी इतना सस्ता चीज़ है, आपको लेबर कास्ट भी ले रहा है आपको, और वही लेबर कास्ट को ट्रीटमेंट से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सबसे मुश्किल से पहुँच रहा है। तो आप वो चीज़ अवेलेबल ही क्यों कराएं समाज को, जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो और कैंसर कारक हो और उनको मिल जाए। आप जैसे कि आप अभी झारखंड में देखें होंगे, सब जगह ये अफीम का खेती नष्ट किया जा रहा है, वही अलाउिंग टोबैको, नहीं तो बंद कर दो, अलाउ ही मत करो स्टेट में। गवर्नमेंट इससे भी रेवेन्यू जनरेट करती है, इन सब चीज़ों से भी। In the other hand, we are generating revenue by selling all this. On the other hand, we are spending that money on treatment. देखिए, यंग पॉपुलेशन अगर लॉस होता है किसी भी कंट्री का, then it is a major loss. ठीक है, ओल्ड पॉपुलेशन जा रहे हैं तो not a big loss for the country. It may be a loss for the family, for individual, but it's not a big loss for the country. और ये यंग वर्किंग पॉपुलेशन आपका डिजीज हो रहा है बिकॉज ऑफ टोबैको। जितने वो कैंसर सब वो यंग पॉपुलेशन हो रहा है, ओल्ड एज बहुत कम आते हैं, सब यंग एज वाले हैं। अभी वार्ड में भरे हैं सब अर्ली एज में, 20s में, 30s में, ये सब लोग हैं। और इनको समझाना बहुत मुश्किल है। जो आपका वर्किंग पॉपुलेशन वो डिजीज हो जाएगा तो हाउ विल कंट्री विल सोचना है। तो बेनिफिट बेहतर है आप बंद करने में, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट करने का और भी तरीका हो सकता है, प्रैक्टिस है आपके पास, बहुत सी चीज़ें हैं आपके पास, उसे जनरेट कीजिए। खैनी से कितने रेवेन्यू आता है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू। गुटखा से तो आता है शायद, जो भी आता है मैडम, मतलब इसको बंद करें। अब बोले, मैं बोला ना, बेनिफिट अगर आउटवे कर रहा है इसको, ऑलवेज तो पॉलिसीज को गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज़ है, पिछले 15-20 साल से जान लगी कैंसर यही चीज़ है। तो ऐसा थोड़ी है कि स्मोकिंग से आपका कैंसर हो रहा है, आपका हार्ट डिजीज हो रहे हैं, बाकी डिजीज हो रहे हैं। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लास्ट में जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को कुछ संदेश
देना चाहेंगे जो कैंसर से जूझ रहे हैं या उनकी फैमिली या जिनको नहीं भी हुआ है? उन देखिए, सबको? व्यूअर्स को तो मैं, लोग तो ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं, हो रहे हैं। मैं कैंसर स्पेशलिटी में जरूर कहना चाहूँगा कि सम फॉर्म ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुड बी मेड फॉर दिस कैंसर पेशेंट। Correct. मतलब Rehabilitation हाँ, program is not there. जैसे हम लोग हैदराबाद में थे, वहाँ काम करते थे, जिससे मान लीजिए किसी का हाथ पे कैंसर में, वहाँ एग्जाम्पल था, हाथ पे कैंसर हुआ था तो ही हैड टू गो एम्पुटेशन, उनका हाथ काटा गया। Okay. तो उसको उसी अस्पताल में हम लोग जॉब दे दी। तो उस इंस्टीट्यूट में उसने क्या किया, उसको लिफ्ट कर बना दिया कि आप लिफ्ट ऑपरेट करो, एक हाथ है ना लिफ्ट ऑपरेट। Okay. तो इस वे में आप उनको रोजगार भी दे रहे हैं, वो बिजी हो तो गया। आप बिजी भी हो गए अपना और काम भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर थे 2 years बैक, छोटी बच्ची थी 7-8 years की थी, अच्छा। उसके आँख में ट्यूमर था और उसका आँख हम लोग को निकालना पड़ा, वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज में था। तो हम लोग को पीछे ब्रेन का कुछ मैटर भी साथ में निकालना पड़ा। तो अगर रेडिएशन हुआ, पेशेंट मतलब बच्ची एकदम ठीक हो गई, बट ट्रीटमेंट तो हो रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट फ्री है, लेकिन उसका खाना, बच्ची खाना फ्री है, उसके माँ बाप का खाना तो फ्री नहीं है, उसका जो खर्च हो रहा है। तो हमने क्या किया, उसकी मदर आई थी, पूछी मुझसे कि सर कुछ ऑप्शन है क्या? तो हमने बोला कि अगर आप झाड़ू पोछा कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है आपको ये सब काम करने में, तो हमारे पास यहाँ एजेंसियाँ जो है आउटसोर्सिंग है, उसका सफाई जो है ना आउटसोर्स। तो जो लोग आते हैं, उन लोग मैनेजर, उनको मैं बोल दूंगा आपको रख लेंगे। अच्छा। तो रेडिएशन जैसे 1.5 महीने चलता है, ठीक है, सर्जरी होते होते मान लीजिए 1 महीना उसमें बीत गया, तो 2-2.5 महीना ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में था ट्रीटमेंट, तो वही काम करने लगे और काम करते करते ऐसे रेंट पे घर भी ले लिया रेंट के बाहर में ही आपका। ये तो बहुत अच्छा है। तो घर ले ली और फिर जब 5-6 महीने हो गया, जब लगा कि बच्चे बिल्कुल ठीक हो गई है सब कुछ, तो उसी केम बैक उसके टोल के सर मैं अपना गाँव तो सीमेंट है, तो उसको उस पीरियड के रोजगार भी मिल गया उसको और कुछ पैसे भी अर्न कर लिए अपना, और फिर चली भी गए अपना, फिर अपना जो वहाँ काम करना हो गाँव अपना कर रही होगी। तो ये चीज़ मतलब एज ए डिपार्टमेंट हमारा उतना इख्तियार नहीं है। That's a really commendable job, मतलब नहीं going out of the way and हाँ। doing something for the patients. नहीं, ये चीज़ मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी में वही मेरा ये है कि आप दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप जो कैंसर पेशेंट हो गए हैं, उनको इकोनॉमिक जो लॉस हो रहा है, उसके लिए कुछ आप उनके लिए बेनिफिशियल कुछ जॉब में ही मान लीजिए लगता है कि वो लोग भी कर सकते हैं, उनको कुछ अगर काबिल है तो उनको दे देना चाहिए, ताकि माइंड भी बिजी रहेगा, वो नेगेटिव माइंड बिजी रहेगा और फिर वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी तो देगा, कॉस्ट भी पे कर पाएंगे। रिम्स में फ्री ट्रीटमेंट हर जगह पे तो नहीं ट्रीटमेंट, हाँ जी। और एटलीस्ट जो ट्रीटमेंट फ्री है तो उसका सपोर्टिंग पे तो खरीदना ही पड़ा है। हाँ जी, दवाई मेडिकल हाँ। और दवाई काफी महंगे हाँ, महंगे वो चीज़ वो खरीद पाएंगे, अपना लाइवलीहुड चला पाएंगे, तो ये बेनिफिट होगा। तो लोग तो जागरूक है ही, लेकिन एज ए सोसाइटी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देयर आर सम सेंटर्स जो कि आप आई थिंक चाय सुट्टा बनाते हैं, अच्छा। तो वो लोग केवल आई थिंक ऑर्फनेज को ही रखते हैं, हम लोग वेरी श्योर बट आई थिंक तो दे आर ऑलरेडी डूइंग सम पार्ट। तो सम एजेंसीज नीड टू कम अप विद दिस आइडिया कि हम लोग कैंसर पेशेंट्स को विल प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। KFC में आप देखिएगा कहीं भी आपको ऑटिज्म के पेशेंट या फिर जो बोल नहीं पाते उनको देते हैं। उनको देते हैं। इसी तरह कैंसर पेशेंट को भी प्रेफरेंस इन सम पार्ट ऑफ जॉब जो कि वो कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे भी वैसी कोई है प्लान rehab कैंसर पेशेंट्स को के लिए? That has to come Rehab from center. other side. Okay. हम लोग का हाथ में जो होगा तो मिलता है। All right. Thank you so much, doctor. You gave us so much time. और ये हमारी तरफ से माइक सारिका की तरफ से छोटा सा गिफ्ट।